गुड मॉर्निंग। कल हम लोग सेट्स कंप्लीट किए थे, आज स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th में भी है और इसी का डेवलप्ड फॉर क्लास 12 में भी है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन। पहले व्हाट इज रिलेशन? तो रिलेशन के पहले और जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद तो हम रिलेशन बता पाएंगे। इसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। Let A and B are two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets. Then Cartesian product of A and B denoted by A into, इस ढंग से डिनोट करते हैं, A into B is a set having elements of all ordered pair AB, where A belongs to A and B belongs to B. That is, Cartesian product A and B can be written as in set builder form AB, such that A belongs to A and B belongs to B. That is, first component of AB, A belongs to A and second component belongs to B. Let A and B are two non-empty sets, then Cartesian product of A and B denoted by A into B is a set having elements of all ordered pair AB, where A belongs to A and B belongs to B. That is, short form में अगर लिखें, A into B is equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B. ये एग्जाम्पल डिफिनेशन में दिया, एग्जाम्पल let A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4. A into B क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट A and B is equal to जो भी एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर 1, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 3 and 2, 4. चार पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट belongs to A and second element belong to B.
1 belongs to A, 1 belongs to A, 2 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to B, 4 belongs to B, 3 belongs to B, 4 belongs to B. The first component belongs to A, second component belongs to B. And if we find B into A, the first component belongs to B. 3 1, 3 1, 3 2, 4 1, 4 2. Therefore, it is clear that A into B is not equal to B into A. देखने में लग रहा है कि जैसे 1 3 3 1 एक ही एलिमेंट है, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। ग्राफ से मैं क्लियर करता हूँ। ग्राफिकल representation of A। सेम वही एग्जाम्पल अगर लेते हैं, ऑरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 1 3 means this point, 1 3 1 4 1 4 means this point, 2 3 2 3 this point, 2 4 2 4 means this one. A into B का हुआ है एलिमेंट, लेकिन B into A का जब 3 1 लिखेंगे तो 3 1 A इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 3 1 A होगा। एंड इसी में दोनों हम देख रहे हैं, A हो गया A into B का एलिमेंट, और B into A क्या होगा, 3 1 एक पॉइंट होगा, 3 1 ये हुआ 3 1, 3 1 इज नॉट इक्वल टू 1 3, ये हम बताना चाह रहे हैं। 3 2 दिस पॉइंट, 3 2 4 1 एक पॉइंट, और 4 2 it is clear that 1 3 is not equal to 3 1, 1 4 is not equal to 4 1, 2 3 is not equal to 3 2, 2 4 is not equal to 4 2। दोनों डिफरेंट है, A into B is not equal to B into A। क्वेश्चन है, फाइंड x and y if
4x plus 3y is equal to 3x plus 5 minus 2. ऐसा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए. Since both ordered pair are equal, the first component of left side is equal to first component of right side. So therefore 4x plus 3 must be equal to 3x plus 5. Therefore x is equal to 2. X is equal to 2. Similarly, y is equal to second component of left side is equal to second component of right side, and y is equal to minus 2. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन फाइंड a and b if a by 3 plus 1 b minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 1 by 3. Both ordered pairs are equal. First component of left side a by 3 plus 1 is equal to 5 by 3. Therefore a by 3 is equal to 5 by 3 minus 1 is equal to 3. 5 minus 3, that is 2 by 3. 3 cancels. A is equal to AD. Similarly, second component b minus 2 by 3 is equal to 1 by 3, or b is equal to 1 by 3 plus 2 by 3 is equal to 3. 1 plus 2, that is equal to 1. b is equal to 1. आंसर हो गया. a is equal to 2 and b is equal to 1. Let a is equal to x belongs to n such that x square minus 7x plus 12 is equal to 0. b is equal to x belongs to whole number such that x is greater than equal to 2, less than 4. C is equal to x belongs to natural number, x is less than 4. Then verify that first a into b union c is equal to a into b union a into c. Second, a into b intersection c is equal to a into b intersection a into c. 4 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ABC टेबुलर फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ABC इन टेबुलर फॉर्म. x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है.
तो सिंपल फैक्टराइज होगा, -7x को ब्रेक करेंगे, -3x -4x, तो आएगा 3 और 4। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 4, और b इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 4, क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, इसमें 2 लाइज करेगा लेकिन 4 लाइज नहीं करेगा। क्या क्या हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा लेकिन 4 नहीं होगा। और c इक्वल टू x इज लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3, 1 2 3 एलिमेंट्स। तो पहले तीनों सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसको लिख दिए टेबुलर फॉर्म में। अब पहला हम एक बना रहे हैं, दूसरा आप अपने बनाएंगे, सेम दोनों सेम टाइप का है। फर्स्ट LHS A into B union C, A is equal to 3 4, B union C 2 3 1 2 3 1 2 3, B union C means 1 2 3। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। लेफ्ट साइड का वैल्यू, राइट साइड का वैल्यू भी अगर यही आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। और RHS इज इक्वल टू A into B intersection A into C, A into B 4 एलिमेंट होगा, 3 2 3 3, पहले इसको लिखेंगे 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3। इंटरसेक्शन A इंटू C, इसमें 6 एलिमेंट होगा, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट होगा। थ्री वन 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। अब इस दोनों का कॉमन, दोनों में क्या क्या कॉमन है, सॉरी यूनियन, मिस्टेक से हो गया है, यूनियन है, राइट साइड यूनियन, दूसरा नहीं कर सकते। तो अब इस दोनों का यूनियन क्या क्या होगा, RHS हम अंडरलाइन कर दें जो जो है, 3 1 3 1 रिपीट नहीं करेंगे, 3 2 सॉरी इसके दोनों का यूनियन है, 3 2 3 2 3 2 रिपीट वाला लिख रहे हैं। 3 2 दो बार नहीं लिखेंगे, 3 3 भी दो बार है, एक ही बार लिखेंगे, 4 2 दो बार है नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना है, 4 3 को एक बार लिखना है। अब ये लिख रहे हैं क्या क्या होगा, 3 2 जो अंडरलाइन के एक बार लिखा, 3 2 3 3 4 2 4 3, और क्या होगा बच गया 3
1 और होल 1, 3 1 और 3 1 होल 1। पहले वाले से मिलाते हैं LHS से, इसमें 6 एलिमेंट है, यहाँ भी 6 एलिमेंट है। Therefore LHS is equal to RHS। दूसरा सेम टाइप का है, कर लेंगे। अब इसी को अगर सेट दिया हुआ नहीं रहे तो कैसे प्रूव करेंगे, ये वह स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, prove that A into B union C is equal to A into B union A into C। पहले वाले में सेट दिया हुआ था ABC, इसमें कुछ भी दिया हुआ है, डेफिनेशन से करना। B इंटरसेक्शन C A into B इंटरसेक्शन A into C कैसे प्रूव करें। Let xy belongs to A into B union C। डिफिनेशन में लिखे हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ऑर्डर पेयर है x belongs to A and y belongs to B union C। इसको लिखेंगे, दिस implies x belongs to A and y belongs to B union C। This implies x belongs to A and इसको क्या लिखेंगे, y belongs to B, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और y belongs to C। अब इसको दो पार्ट में अगर हम लिखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, x belongs to A and y belongs to B, और x belongs to A and y belongs to C। अब इसको एक टर्म में क्या लिखेंगे, x belongs to A and y belongs to B। This implies xy belongs to A into, और x belongs to A and y belongs to C। इसको एक टर्म में क्या लिखेंगे, xy belongs to A into C। अब इसको फिर एक टर्म में अगर लिखें दोनों पार्ट को, क्या लिखेंगे, xy belongs to A into B union A into C। हम xy माने थे लेफ्ट साइड में, और आ गया xy राइट साइड का एलिमेंट आ गया। इससे क्या प्रूफ हो गया, LHS इज सबसेट ऑफ RHS। इसी ढंग से अगर इसमें हम मान ले U भी और अपोजिट डायरेक्शन में चले, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे। तो एक पहले चैप्टर में बताए इस सिंबल का अगर यूज करें तो दूसरा पार्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख देंगे। Therefore A into B union C is equal to A into B union A into C। एक ही पार्ट से हो जाता है, कन्वर्सली प्रूव करने की जरूरत। इस सिंबल का मतलब हुआ इफ एंड ओनली, और ऐसे था केवल दिस इम्प्लाइड, माने इसमें कन्वर्सली भी पैरेलल में चल रहा है। तो पहला हम प्रूव कर चुके हैं, सेम प्रोसेस से आप लोग दूसरा भी कर लेंगे।
हम समझ गए होंगे। जहां भी डाउट होगा जरूर कमेंट में भेजिए।